Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो चतुश्लोकी भागवत की श्रृंखला में पहले 2 श्लोक हमने 6 क्लास में लिए हैं और आज 7वां क्लास 3रा श्लोक में हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले 2 क्लास जो लिए थे, पहले 2 श्लोक जो लिए उनका अनुवाद पढ़ के आगे चलते हैं ताकि हमें लिंक बनी रहे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब
इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। हाँ, वह भी मैं ही हूं। अभी हम देखते हैं गीता में भगवान विभूति योग बताते हैं। तो भगवान कहते कि पर्वतों में हिमालय में हूँ, सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, पांडवों में धनंजय, अर्जुन में हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं एक दृष्टि से सर्व जगह व्याप्त हूँ और फिर भी सबसे अलिप्त हूँ। आगे दूसरे श्लोक में बताया, ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। ऐसा वास्तविकता नहीं है। अंधकार में जैसे प्रतिबिंब दिखता नहीं है, प्रतिबिंब का कोई ये नहीं, मोल नहीं है, उसकी वास्तविकता नहीं है। ठीक वैसे ही जब तक हम भगवान से वास्तविकता नहीं जोड़ते, जब तक कोई भी चीज भगवान से संबंधित नहीं रखते हैं, तो वो माया का प्रभाव है और वो एक अंधकार की समक्ष है। अंधकार जो है, भगवान कहते हैं कि इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। इसे मेरी माया जानो, भगवान कह रहे हैं कि जो अंधकार है, जो हम लोग बैक टू गॉड मैगजीन में सबसे पहले ऊपर लिखा है, कृष्ण है सूर्य सब, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। तो इसे मेरी माया जानो, यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि जो मुझसे संबंधित नहीं है उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। आज तीसरा श्लोक में चर्चा करने जा रहे हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में, एक तरफ ब्रह्मांड है एक तरफ विश्व की बात बता रहे हैं, ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। इट्स अगर ये खाली पढ़ेंगे तो शायद नहीं, 99% हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि है, वो चक्राव में आ जाएगी। ये क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये क्या कहना चाहते हैं? लेकिन ये इसका अनुभव हमें नहीं है, क्योंकि जो भी भौतिक चीज हमारे सामने प्रकट होती है तो हम उस हर एक चीज के मूल में नहीं जाते। हम उसको देखते हैं और मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, उसके मूल में नहीं जाते। यहाँ पे भगवान हर एक चीज की वास्तविकता, उसका मूल की बात कर रहे हैं। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो
कि ब्रह्मांड के सारे तत्व, ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु में से पृथक रहता हूँ। हाँ, अभी जैसे हम देखते हैं जलाशय है, समुद्र है, सूर्य है, चंद्र है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, देवी देवताएं हैं, कई जीव सृष्टि है। अगर इसके अंदर हम आत्मा और परमात्मा, उसके मूल तत्व का दर्शन नहीं करते हैं तो हम वास्तविकता नहीं देख रहे हैं। जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो भी चीज मेरे से जुड़ी हुई नहीं है वो अंधकार जन्य है। यानी कि जब हम बाह्य रूप रंग देखते हैं वो अंधकार जन्य है। बाह्य रूप रंग यानी कि कई बार कोर्ट में कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ऐसा हम साक्षी लेते हैं, लेकिन हमारी आंखों से हम पूर्ण सत्य को देखने के लिए लायक नहीं है और न देख पाते हैं। इसके लिए गुरु और भगवान की करुणा चाहिए। इसके अलावा हम पूर्ण सत्य को नहीं देख सकते हैं। पूर्ण सत्य हमारे सामने रहते हुए भी उसको समझ पाना, जितना प्रमाण मात्रा में हमारे अंदर पवित्रता और शुद्धता प्रविष्ट होगी, भगवान के प्रति प्रेम प्रविष्ट होगा, उतनी मात्रा में हम इस चीजों को समझ पाएंगे। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। इसको तात्पर्य से पहले हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत हम पढ़ रहे हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चाव चेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हमने भागवत में ये श्लोक पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ये श्लोक भागवत में मौजूद है, भागवत के पन्ने पर यथा रूप में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने भागवत हमारे में प्रविष्ट हुआ भी फिर भी नहीं हुआ। हम आईने के सामने खड़े रहते हैं, आईने के सामने खड़े रहने से हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखाई देता है, लेकिन वो आईना का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है। जब हम हट जाते हैं वो प्रतिबिंब भी चला जाता है। तो जहां भी भगवान की वास्तविकता नहीं है वो वास्तविक नहीं है। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक, समीर तथा गगन। देखिए, स्थूल तत्व की, सूक्ष्म तत्व की, हर एक चीज की बात बताई है। भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक यानी अग्नि, समीर पवन तथा गगन आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल प्रकृति है वो। और चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर पौधे, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में भगवान प्रविष्ट होते हैं। ये परमात्मा के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान हमारे अंदर प्रविष्ट है। लेकिन एक साथ भी भगवान क्षीर सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में उपस्थित है। तो भगवान प्रविष्ट हुए भी फिर भी नहीं हुए। हम जैसे कि देखते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु जो भगवान कृष्ण से, दाऊ भैया बलराम जी से होकर, भगवान नारायण से होकर, अनिरुद्ध प्रद्युम्न से होकर प्रथम पुरुष अवतार जो कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं या महाविष्णु कहते हैं, वो महाविष्णु की एक सांस से कई विश्व उत्पन्न होते हैं और वही सांस वापस लेने में कई विश्व भगवान में वापस प्रवेश कर जाते हैं। जब भगवान अपनी आंख का दृष्टिपात करते हैं तो भगवान की आंखों से सारी जीव सृष्टि,
सारे ब्रह्मांड के तत्व, भौतिक तत्व प्रकट हो जाता है, जिसको कहते हैं हम महत तत्व। जो महत तत्व, दिस इज द समम बोनम ऑफ ऑल, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी आंखों से दिखाई देने वाला हर एक तत्व, ये सभी तत्व के अंदर महत्त्व, यानी कि ये महत्त्व का एक प्रतिबिंब है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो भगवान की दृष्टि से ये महत्त्व प्रकट हुआ और महत्त्व भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट हुआ। ये हम जानते हैं, पहले स्कंद में हम देख चुके हैं। तो भगवान विभूति योग में भी बताते हैं, कई एग्जाम्पल दिए कि पर्वतों में मेरू में हूँ, और जलाशय में समुद्र में हूँ, पांडव में अर्जुन में हूँ, पानी का स्वाद में हूँ, कई विभूति बताई है। ये एग्जाम्पल के जरिए कहने का मतलब है कि भगवान स्थावर जंगम चर अचर हर एक चीज में, हर एक जीव सृष्टि में भगवान उपस्थित है जब तक। इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त को जो है चारों तरफ भगवान का प्रागट्य देखते हैं। वो भगवान का ऐसा नहीं देखते कि ये तो पत्थर है, या तो ये तो पहाड़ है, या तो जलाशय है। नहीं, भगवान की प्रविष्ट होने के अलावा हर एक कोई भी चीज की कोई वास्तविकता नहीं है। ना हम बोल सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं। कोई डेड बॉडी कोई सुन सकता है? नहीं। कोई डेड बॉडी बात कर सकता है? नहीं। जो हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, तभी हम सुन सकते हैं, तभी आप सुन सकते हैं, मैं बोल सकता हूं। तो हमारे अंदर जो भी शक्ति है वो और कुछ नहीं, भगवान की शक्ति है। ये तो एक बाह्य दर्शन के रूप में भगवान समझाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे जिह्वा से जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो भगवान स्वयं अपनी शक्ति के साथ हमारी जिह्वा पर प्रकट होते हैं। ये चीज हम चतुश्लोकी भागवत से सीखना चाहिए कि जब भगवान ही चारों ओर है, भगवान ही सर्वस्व है, तो हम इस दुनिया में किससे द्वेष करें, किसको हानि पहुंचाए, किसका भला बुरा करें? हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। और जो भी भला बुरा या क्रिटिसिज्म या हानि पहुंचती है, उसका प्रागट्य हमारे पाप, अज्ञानता, अंधकार और फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से प्रकट होता है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन यह कर्म बंधन पैदा करता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पैदा करता है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त अजात शत्रु रहता है। अजात शत्रु का मतलब है कि उनका कोई शत्रु नहीं होता है, उनका कोई मित्र नहीं होता है। वो सभी जगह, जैसे कि परमहंस की दृष्टि, तो जैसे कि परमहंस की दृष्टि, जो परमहंस भगवान का भक्त है, वो हर एक चीज में भगवान का आविर्भाव देखते हैं। जैसे जैसे हम कनिष्ठ भक्त हैं, हमें जन्माष्टमी साल में एक बार दिखाई देती है और मनाते हैं। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त बोलते हैं कि इस्कॉन के मंदिर में भगवान हर रोज प्रकट होते हैं, हर रोज श्रृंगार आरती होती है, और भगवान अलग अलग रूप धारण, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पूर्ण पुरुषम न वयौवनम च। तो भगवान हर रोज अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जनरली ये उत्सव है, ये उत्सव हमारी भक्ति को जगाने के लिए, लेकिन भगवान का भक्त के लिए हर रोज उत्सव है। भगवान का भक्त के लिए जैसे अपनी आंख खोली, जैसे बुद्धि ने काम करना शुरू किया, तो उसको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की करुणा, कृष्ण की कृपा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जब तक हम नए नए हैं, तो हम भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं। भगवान से प्रेयर जरूर करना है, शुद्ध भक्त भी करते हैं, लेकिन याद रहे कि भगवान की वास्तविकता जितनी हम
सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जितना भगवान को प्रेम करना, जगाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक, अबजों गुना अधिक, अनलिमिटेडली अधिक भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। तभी हमारी छोटे से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं, चाहे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, चाहे सूर्य शक्ति प्रदान करते हैं, चाहे गेहूं का दाना प्रदान करते हैं, चाहे हमारी बुद्धि में याद शक्ति दिलवा देते हैं, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, चाहे हमारे हृदय में प्रविष्ट करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो भगवान हम भगवान के बारे में कभी कभी सोचते हैं, जब आई मी एंड माइंड से बाहर आते हैं तब भगवान के बारे में कभी सोचने की इच्छा होती है, वो भी भक्त का संग हो तो, नहीं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते, हमारे परम पिता है, हमारा सर्वेश्वर है, प्राणेश्वर है, तो भगवान हमें नहीं भूलते। तो ये चीज भगवान का भक्त हमेशा याद रखता है, इसीलिए वो कहीं भी कोई भी जगह में आनंदित रहता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व विज्ञानम, प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान उपस्थित नहीं है। गोपी ने कहा अगर नरक में भी जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि भगवान के बिना कोई वस्तु उपस्थित नहीं है। तो गोपियों ने अपनी पांव की चरण धूलि भी दे दी। और प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्य भी कहते हैं इवन भगवान हमें कहीं भी भेज दे, हाँ, लेकिन हम हर हाल में भगवान का दास है। आश्लेष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदथा तुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सएव न परा। हाँ, तो भगवान का जो श्रीमती राधा रानी भी ये कह रही है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि प्रभु आप मुझे आलिंगन करें या अपने पैरों से कुचल दें, हर हाल में मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। अभी ये बात, ये स्टेटमेंट कोई अंधापन नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान हर एक महत तत्व के जरिए हर एक में प्रवेश करते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि हम कैमरा से अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो कैमरा से हम लैपटॉप या मोबाइल में प्रविष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रविष्ट नहीं हुए हैं। जैसे टीवी में कहीं न्यूज दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति टीवी के अंदर नहीं है। हम आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, फिर भी हम आईने में नहीं है। पुस्तक में हम भागवतम श्लोक या गीता का श्लोक पढ़ते हैं, वो हम ग्रहण करते हैं, बाय हार्ट करते हैं, हम याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पुस्तक में पूर्ण मात्रा में उपस्थित रहता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो कनिष्ठ भक्त से शुद्ध भक्त में क्या अंतर है? तो कनिष्ठ भक्त हैं उनको सिर्फ अर्च विग्रह में भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान का जो मध्यम अधिकारी भक्त है वो सभी जीवों का कल्याण के लिए कार्य करता है, और उत्तम अधिकारी भक्त सभी में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में सभी का दर्शन करता है। और उसका जो तत्व है, जो ओरिजिनल, चतुश्लोकी भागवत में भगवान ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, और उसका ओरिजिनल जो तत्व है वो तत्व की बात यहाँ भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी यही बात अपने पुत्र नारद जी से कह रहे हैं, और वही बात वेद व्यास जी हम सब तक पहुंचा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी हम तक, प्रभुपाद जी के जरिए हम तक पहुंच रही है। तो इतना सब कुछ गारंटेड, बोनाफाइड, वास्तविक श्रृंखला में हमें ये ज्ञान मिल रहा है। फिर भी अगर हमें भगवान का दर्शन न हो, इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं भगवान से द्वेष और ईर्ष्या कर रहे हैं। जहां द्वेष है, जहां ईर्ष्या है, वहां प्रेम की उपस्थिति नहीं होती। किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर, चेतना के विकसित होने पर,
यानी कनिष्ठ भक्त से शुद्ध भक्त बनने पर मनुष्य शारीरिक क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मूल सिद्धांत जो है भौतिक तत्व है, लेकिन ये भौतिक तत्व आए कहां से? भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि ये भौतिक सृष्टि भी नहीं प्रकट थी। जब कुछ भी नहीं था तो मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं रहूंगी। प्रकृति भी नहीं रहेगी, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो भी शेष भगवान रहते हैं। इसीलिए तो भगवान के उपदेश, ये 4 वेद, ये सभी शास्त्र सनातन धर्म के शास्त्र माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कभी भी नाश नहीं होता। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों के द्वारा जो प्राप्त नहीं है वो अदुर्लभम आत्मभक्तो, वो चीज हमें भागवत से प्राप्त हो रही है, वो ज्ञान। और ये जीव के साथ शाश्वत प्रविष्ट हो रहा है हमारे अंदर। कैसे? इसके लिए वो जो श्लोक है ना श्वेतशतरोपनिषद का, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको अपने गुरु और भगवान पर पूर्णतया श्रद्धा है तो शास्त्र स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। शास्त्र स्वयं अपने हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये कोई बाह्य बात नहीं है, ये बात ये है कि गुरु और भगवान पे पूर्णतया श्रद्धा हो। हाँ, वो हमसे दुनिया, क्योंकि हम दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, दुनिया के लोगों की बात देख रहे, सुन रहे, ये सभी बातें अपूर्ण है, सभी बातें सीमित है, सभी बातों में मतलब है, सभी बातों में कुछ ना कुछ चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं। लेकिन जब हम भगवान की कथा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान का साथ, तो इसमें कोई भी स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, इसका प्राकट्य नहीं होता, क्योंकि ये परम शुद्ध ज्ञान है और भगवान से डायरेक्ट आया हुआ है। तो ये जीव का ओरिजिनल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो जीव को जब समझ में आता है कि मुझे सतत भगवान का चिंतन करना चाहिए, अगर भगवान ने हमें मन दिया है तो मन का चिंतन में सिर्फ भगवान रहना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु सततम कीर्तयन्तो मां ये जना परिभक्त। तो हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान की महत्ता को समझना चाहिए। मैं जब तक किसी को कुछ न बताऊं तब तक दूसरे को नहीं मालूम होता कि मैं क्या सोच रहा हूं। इतना हम सीमित हैं, लेकिन भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो हमारे सबसे निकटवर्ती मित्र जो है वो भगवान स्वयं है, और स्वयं मित्र बनकर भगवान हमारे साथ अनादिकाल से आत्मा के साथ चल के आ रहे हैं और साथ में ही रहेंगे। आत्मा को कभी अलग नहीं करते अपने से। ऐसे मित्र भगवान को हम कैसे भूल जाते हैं? जब हम भूल जाते हैं इसका मतलब हम भगवान से पृथक होना चाहते हैं, भगवान से पृथक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। तो अब भगवान से पृथक आइडेंटिटी बनाएंगे तो वो वास्तविकता नहीं रहेगी, मिथ्या अहंकार का प्रतीक रहेगा, अंधकार और अज्ञान जन्य होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। कभी भी हाथ की उंगली हम नहीं कहेगी कि मैं सहिष्णु कृष्णदास हूं, नहीं, क्योंकि हाथ की उंगली भले शरीर के साथ जुड़ी है, शरीर का अंश है, लेकिन वो व्यक्ति वो आइडेंटिफाई पूरी बॉडी से नहीं कहते। जैसे मेरा सर नहीं कह सकता, मेरा पाँव नहीं कह सकता, मेरा हाथ नहीं कह सकता, लेकिन सभी का समन्वय होकर आप कह सकते हैं कि ये सहिष्णु कृष्णदास है। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई देता है इसमें वास्तविकता भगवान की है। यहाँ पे आगे बताता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों क्षिति, जल इत्यादि से बने, और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से बाहर भी है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे बना हमारा शरीर है। लेकिन पृथ्वी हमारा शरीर से बाहर भी है, जिसके ऊपर हम कदम रखकर चलते हैं। हाँ। जल बाहर भी है, जलाशय है, बाहर भी है, बारिश भी आती है। तो हमारे अंदर भी जल है, बाहर भी जल है। अग्नि भी है हमारे अंदर, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह महाश्रिता, अंदर भी है और बाहर भी अग्नि प्रकट हो सकती है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, हमारे अंदर भी 5 प्रकार के वायु है और बाहर भी हवा चलती है, वायु चलता है। और आकाश तत्व हमारे अंदर भी है और भगवान बाहर भी है आकाश तत्व। तो ये 5 तत्व हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। इस चीज का हमें मनोमंथन करना है, ये चीज को समझने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि भगवान ये सभी तत्व, चाहे उन्होंने एक आकार धारण कर लिया, जो सहिष्णु कृष्णदास के रूप में, या कोई भी प्रभु जी के माता जी के रूप में, या कोई सरी सृष्टि के रूप में, या पक्षी के रूप में, या पशु के रूप में, या पर्वत के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने अलग अलग रूप धारण किया हुआ है। ये सभी आत्माएं भगवान की दृष्टि से भले अचर दिखती हो, हमारी दृष्टि से अचर दिखती हो, लेकिन भगवान की दृष्टि से वहां सभी आत्माएं मौजूद है और उनके साथ भगवान का प्राकट्य मौजूद है। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए। पहले तत्व की उत्पत्ति हुई कैसे, उसको समझे। जैसे एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाते हैं, मिट्टी में घर बनाता है, मिट्टी से लेकर घर बनाता है, लेकिन मिट्टी का तत्व वहीं पड़ा है, और मिट्टी और पानी सब कुछ वहीं पड़ा है। बच्चा ने जाके घर बनाया, लेकिन घर के पहले भी मिट्टी थी, घर के अंदर भी मिट्टी है, और घर चला जाएगा तो अभी मिट्टी वहीं की वहीं रहेगी। तो कहने का मतलब यह है, जब भक्त, शुद्ध भक्त भगवान का तादात्म्य, भगवान का प्राकट्य हर जगह देखने लगता है, तब उसका डर मृत्यु से चला जाता है। तब वो मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है मैं तो भगवान की गोद में बैठा हूं और भगवान मेरा कल्याणकारी नियंता है। मैं भगवान को भूल जाता हूं, यही तो मेरा कर्म बंधन है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। तस्मात् यानी देयरफॉर, तस्मात् का अर्थ है इसीलिए, यानी कि पहले काफी चर्चा हो गई है इसके ऊपर, उसके बाद जो कंक्लूजन आता है, इसलिए शब्द यूज होता है तस्मात्, यानी कि देयरफॉर, इसीलिए। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर पल, माम अनुस्मरयुध्य च, तुम्हें जो करना है, तुम्हारे ड्यूटी में जो आता है करो, लेकिन माम अनुस्मरयुध्य च, भगवान का स्मरण करते हुए करो। जब हम भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे, तब हमसे पाप नहीं होगा, हमसे पाप नहीं होगा, हम भगवान को याद करके करेंगे। पहले तत्व की उत्पत्ति, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशा में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। महत्त्व की अपनी एक आइडेंटिटी है, और वो महत्त्व भगवान का दृष्टिपात से प्रकट हुआ, और वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन के रूप में, भौतिक तत्व के रूप में भी प्रकट हुआ, दिखाई देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियां, अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है, और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में भी स्थित है। बहिर् नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिम्हा मादिम शरणम प्रपद्ये। हमारे अंदर भगवान है, हमारे बाहर भी भगवान है। हमें क्यों गुस्सा आता है, हम क्यों द्वेष करते हैं, हम क्यों ईर्ष्या करते हैं, हम क्यों पाप करते हैं? जब भगवान हमारे साथ निकटवर्ती मित्र है। इस भागवत में वर्णन आता है, ऋषि मुनियों का अनुभव है कि सुत गोस्वामी कह रहे, शौनक ऋषि कह रहे, उसमें कहते हैं कि इस जगत के अंदर ऐसी कोई समस्या ने जन्म नहीं लिया
जिसका हल श्रीमद् भागवत में उपस्थित न हो, जिसका हल भगवान के द्वारा न किया जा सके। और तो और इस जगत के कोई भी मनुष्य इतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम से न मिट जाए। भगवान के नाम से मिट जाए वो तो काफी इनकी कैपेसिटी है, और हम इतना पाप कर ही नहीं सकते। फिर भी अंधकार जन्य में हम अपनी आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए मिथ्या अहंकार, पाप, अज्ञानता के जरिए हम आई मी एंड माइन कहते रहते हैं। इसलिए भगवान का भक्त को सभी जगह भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने कभी वृंदावन छोड़ा नहीं है, मैंने कभी वृंदावन, लेकिन प्रभुपाद जी ने वृंदावन को अपने हृदय में धारण करके पाश्चात्य जगत में गए थे। तो प्रभुपाद जी कभी भी वृंदावन से अलग नहीं हुए। और आज भी हमें दिखाई देता है कि प्रभुपाद जी वृंदावन में समाधि है, नहीं, प्रभुपाद जी आज भी असली गोलोक वृंदावन में है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियां अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है, और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित है। अभी आपका प्रश्न हो सकता है, तो प्रभु हम कैसे कह दे कि मृत्यु के बाद हमें नरक में जाना होगा, या तो हमारा कर्म बंधन के हिसाब से फिर अलग अलग योनि में जन्म लेना होगा, या तो भगवत धाम जाना होगा। भगवत धाम जाना होगा तो हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे, लेकिन हमारे कर्म की श्रृंखला में अगर कहीं और जाना हुआ तो हम कैसे कह दे कि भगवान वहां नहीं है। भगवान हर जगह है। जैसे हमने भगवान की विस्मृति हुई, कर्म बंधन ने जन्म ले लिया। जैसे भगवान की विस्मृति हुई, कर्म बंधन ने जन्म ले लिया। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरयुत्यज। तो हमें भगवान की विस्मृति, हमें आदत सी हो गई है कि भगवान को लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, भगवान की महत्ता को हम नहीं जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा के हाथ में आप डायमंड दे दो, कोहिनूर डायमंड दे दो, तो वो खेलेगा या तो कचरे में फेंक देगा। उनको डायमंड की वैल्यू का पता नहीं है। ठीक वैसे ही हमें मनुष्य जीवन का पता नहीं है। हमारे पल पल हमारे मन में विचार आता है, बुद्धिजन्य विचार आता है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। उसमें भगवान को रखना है, मन मना भवो मद भक्तो, हम भगवान को रखते नहीं है। ये बच्चे की तरह है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्म संहिता 5:38 में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत इस प्रकार मिलता है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूं, जो अपनी सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का मुख उठाते हैं, और साथ ही साथ वे सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते हैं। अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं, यानी कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान भोक्ता है, लेकिन अज्ञानतावश हम सोचते हम भोक्ता है। एक्चुअली भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद ले रहे हैं, और कभी कभी हम ऐसा दिखाई देता है हम भी आनंद ले रहे हैं। नहीं, जब हम कृष्ण को भूल रहे हैं वो आनंद हमारा कर्म बंधन होगा। लेकिन जब भगवान का भक्त संकीर्तन में आनंद करता है, भगवान के साथ जुड़कर, और संकीर्तन में डांस करता है, सभी भक्तों का बैठ के भगवान की चर्चा करता है, भगवान का संकीर्तन करता है, तो वास्तव में भगवान ही वहां उपस्थित होते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि जहां मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, संकीर्तन करता है, मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। तो वो आनंद, जब हम संकीर्तन में आनंद ले रहे हैं तो याद रहे कि हमें आनंद बाद में प्रसाद के रूप में मिलता है। पहले हमारे संकीर्तन से भगवान आनंद ले रहे हैं और भगवान का आनंद का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आता है तो हम आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम भगवान को सुख नहीं दे पाएंगे हमें सुख नहीं मिलेगा, हम भगवान को आनंद नहीं दे पाएंगे हमें आनंद नहीं मिलेगा। और भौतिक जगत में अगर हम आनंद की बात करते हैं, वो आनंद सीमित होगा, सूक्ष्म होगा, नाशवंत होगा, तुरंत चला जाएगा, समय के प्रादुर्भाव से तुरंत चला जाएगा। ये तो शायद हमने कोई पुण्य कर्म किया, उसका फल मिल रहा है कि हमें संसार सुख में आनंद दिखता है, लेकिन वास्तव में संसार में आनंद नहीं है। भगवान को आनंद देने में आनंद छुपा हुआ है। और साथ ही वे सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त है। उसी ब्रह्म संहिता 5:35 में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। यथा एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयादंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं। हाँ, मैं श्री गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने एक अंश के द्वारा, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में, अणु की बात नहीं, परमाणु की बात बता रहे हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अणु का भी अनगिनत छोटा हिस्सा, परमाणु बम जैसे कि जिसको कहते हैं परमाणु, वो परमाणु में भी भगवान मौजूद है। हम कैसे कह दें कि भगवान हमारे आसपास नहीं है, भगवान की शक्ति हमारे पास नहीं है, भगवान हमारे बाजू में उपस्थित नहीं। जहां भी भगवान की महिमा होती है, गुणगान गाए जाते हैं, भगवान के उपदेश बताए जाते हैं, भगवान वहां उपस्थित होता है। आज हमारे बीच में भी श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। हमारे अंदर देखने की शक्ति चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए। हमारा सीमित मन इसको नहीं समझ पाएगा। हम जितना सीमित रहेंगे उतना हम भगवान से दूर रहेंगे। भगवान असीमित है। असीमित रहने के लिए क्या करना चाहिए? असीमित रहने के लिए भौतिक एग्जाम्पल देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन कोई छोटी सी चीज दिखनी है तो हमें हमारी आंख को एकदम छोटी बनानी पड़ती है और ध्यान से, जैसे सुई में धागा डालते हैं तो बड़ी आंख छोटी करके सुई में से धागा डालते हैं। तब आप आंख बड़ी रख के सुई में धागा डालेंगे तो नहीं जाएगा, आंख को छोटी करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तब हमें सही चीजें दिखाई देंगी, और जितनी जितनी पवित्रता हमारे अंदर प्रकट होती जाएगी भगवान के नाम से, उतनी मात्रा में हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती जाएगी, और जितनी सूक्ष्म दृष्टि होती जाएगी तो वो सूक्ष्म भगवान सूक्ष्म तरीके से कैसे भौतिक पदार्थों में चल अचल सभी जगह मौजूद है, उसका प्रागट्य भी दिखाई देगा। उसका प्रागट्य देखने का मतलब है कि उनकी शक्ति ही काम कर रही है, इनके अलावा कोई वास्तविकता नहीं है। निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि पर ब्रह्म सर्वव्यापी है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके साकार होने की कोई संभावना नहीं है। कौन? निर्विशेषवादी। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्,
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं तुम मेरा प्राग अस्तित्व को स्वीकारते नहीं, मेरे साकार स्वरूप को स्वीकारते नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं साकार के रूप में आपके मन में या बुद्धि में कभी प्रकट नहीं होऊंगा। भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं अपने भक्तों के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हम कर्म से नहीं जान सकते, ज्ञान से नहीं जान सकते, ध्यान से नहीं जान सकते, भगवान को योगी जन भी कभी नहीं जान सकते। भगवान को जानने वाला उनका अपना अंतरंगा भक्त होते हैं। साकार होने की कोई संभावना नहीं। यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है, यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है। दिव्य ज्ञान का रहस्य, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, जैसे माँ बच्चे को कभी कभी नई नई चीजें सिखाती है छोटे बच्चे को, तो बच्चा जिद करता है नहीं मुझे ये चाहिए, माँ कहती है बेटा इसको हाथ लगाएगा तो हाथ जल जाएगा, ये अग्नि है, उसमें हाथ मत डाल। हाँ, तो माँ सिखाते हैं और बच्चा कहता है कि क्या हाथ कैसे जलता है, मैं तो इसमें हाथ डालना चाहता हूं। तो हम भी ऐसे भगवान के बच्चे हैं कि भौतिक जगत में स्वयं आनंद लेना चाहता है, वो अग्नि के साथ खेलना चाहता है, और वो है दावानल। हम उसके साथ खेलना चाहते हैं। हम भगवान का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश, माँ का उपदेश भूल जाते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम स्वयं आनंद लेना चाहते हैं, स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान को संतुष्ट नहीं करते, जब तक भगवान को आनंद नहीं देते, जब भगवान को सुख नहीं देते, तब तक हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। वो बच्चा जब माँ की उपदेश का पालन करेगा तो माँ को आनंद होगा कि मेरा बच्चा कितना आदेश का सम्मान करता है, तो बच्चा को भी आनंद आएगा कि मेरी माँ मुझसे बहुत खुश है। यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है, और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है, वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। वही कौन? यह रहस्य भगवान के दिव्य प्रेम है, और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम में पूरित होता है, वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। इसीलिए तो सनातन धर्म में हम शिवलिंग को भी भजते हैं, अर्च विग्रह को भी भजते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, उनको वो पत्थर की मूर्ति या लकड़े की मूर्ति दिखाई देती। ये तो एक भगवान कण कण में मौजूद है। ये तो हमारे मन को एकाग्र करने के लिए भगवान ने अर्च विग्रह स्वरूप धारण किया है या शिवलिंग स्वरूप धारण किया है। ये हमारा मन को एकाग्र करने के लिए, लेकिन वास्तव में भगवान स्वयं ऐसे रूप में मौजूद है। भगवान, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण साक्षात अर्च विग्रह में प्रवेश करते हैं। तो हम अर्च विग्रह के सामने सर झुकाते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन आज तक जनरली शुरू में हमें कभी भी भगवान का सामने नमन करके आ जाते हैं, हमारी बुद्धि सोचती है कि ये तो एक पढ़ाया हुआ पाठ है संसार में कि ये भगवान का दर्शन मैंने मंदिर में किया। नहीं, ये वास्तव में भगवान वहां मौजूद है, वास्तव में भगवान हमारे साथ चलते हैं। ये तो आप भगवान को मिलने गए हैं, भगवान ने आपको बुलाया, इसलिए आप भगवान को मिलने मंदिर गए हैं। वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। साथ ही वह भगवान के उनके धाम गोलोक में अपने नित्य पार्षदों के साथ जो उनके ही विस्तार है नित्य लीला करते देख सकता है। नित्य लीला करते देख सकता है। वास्तव में हम सब राधा कृष्ण के, या तो भौतिक जगत से देखो तो मनु और शत्रुपा के संतानें हैं, लेकिन ओरिजिनल मनु शत्रुपा के जरिए है, ओरिजिनल ब्रह्मा जी के जरिए, उससे ओरिजिनल ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के जरिए कारणोदक्षय विष्णु के जरिए है। लेकिन कारणोदक्षय विष्णु बलराम जी के जरिए, संकर्षण के जरिए, और फिर भगवान के जरिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान सभी जगह व्याप्त है भी और नहीं है। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक बार
अर्जुन को और दुर्योधन को कहा कि उनको एक पिंजरे में एक पक्षी को दिया, बोला इसको जाके आप मार डालो, लेकिन एक कंडीशन है कि जब कोई ना देखे वहीं जाके इसको मार डालो। तो अर्जुन भी वो पिंजरा लेके गया, दुर्योधन भी गया। हाँ, तो दुर्योधन ने तो जंगल में जाके देखा कोई नहीं देख रहा है, पक्षी को मार डाला। लेकिन अर्जुन वापस पक्षी को लेकर आया जिंदा। बोले प्रभु मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई ना हो। भगवान कण कण में मौजूद है। हम पाप करते हैं, हम सोचते हैं यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, चारे दिशाएं हमारे ऊपर भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, अंदर से बाहर से सभी जगह हमारी विटनेस हो रही है, उपद्रष्टा अनुमंता च। तो फिर हम क्यों पाप करते हैं? ये पाप हमें हमारा मिथ्या अहंकार करवाता है, ये मूर्खता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम न अभिजानाति लोको माम अजमव्ययम। मैं हर लोकों में कैसे मौजूद हूं, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते। अपनी योग माया से आच्छादित रहता हूं। यही दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा, स रहस्यम तदगम च, यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान के परम गुह्य भाग है। यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है, इसलिए वो प्रणाम करते हैं। जैसे हम वृंदावन में प्रविष्ट होते हैं भक्तगण, तो पहले वृंदावन की भूमि को, मिट्टी को प्रणाम करते हैं। हमें दिखा है, हम वृंदावन को प्रणाम करते हैं, वृंदावन की मिट्टी को लीला प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है, ये भगवान की लीला स्थली है। भगवान नंगे पैर यहाँ घूमे हैं, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें भगवान के भक्त को कोई भी जगह भगवान के अलावा खाली नहीं दिखाई देती। और इसी प्रमाण से श्रील प्रभुपाद जी ने जीवों के कल्याण हेतु वृंदावन छोड़कर भी वृंदावन लेकर पाश्चात्य जगत गए थे। और इसे चिंतक बौद्धिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसको हम हजारों साल तक चिंतन करते रहे अपनी बुद्धि से, तो हम कभी भी इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ चीज ऐसी होती है, साधु गुरु शास्त्र का अर्थ ये कि कुछ चीज ऐसी है, ये बोनाफाइड चीज है, उसको स्वीकारना है, अंधश्रद्धा नहीं है। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी हो जाएगी तब हम समझ में आएगा कि ये वास्तविकता है। शुरू में वास्तविकता का पता नहीं है तो हम स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे 2 + 2 4, तो वो बाय हार्ट करता है 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4। लेकिन एक्चुअली वास्तविकता जब वो बैंक का कैशियर हो जाता है तो उसको पता नहीं, ये ऑटोमेटिक मालूम है कि 2 + 2 4 ही होता है। माँ ने कहा कि अग्नि में हाथ मत डालो, तो वो बचपना था, माँ ने मुझे क्यों रोका। लेकिन जब बड़ा हो गया तो पता चला कि अग्नि से ताप मिलता है, प्रकाश मिलता है, अग्नि में हाथ डालने से जल जाएगा। वो जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें माँ बाप आके नहीं सिखाते कि बेटा अग्नि में हाथ मत डालो, हमें स्वयं को पता है। तो जो भगवान का भक्त है उसको ये सभी चीज गुह्य भाग भी पता है, और बौद्धिक व्यायाम के द्वारा ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह रहस्य ब्रह्म संहिता 5:38 में ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों से में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं।
तो हम कैसे कह सकते हैं अगर हम कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, हमारे अंदर भगवान मौजूद नहीं है। जब नहीं है तो हम शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ, लेकिन वो वास्तव में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेषु सर्वेषु अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। तो यह हृदय के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। अभी और एक बात है कि भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता कही, और भगवान ने सृष्टि के सृजन के पूर्व सृष्टि के सृजन से पहले सबसे पहले जो जीव तत्व पैदा हुए भगवान की नाभि कमल से, तब ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वही ज्ञान अर्जुन को दिया द्वापर के अंत में महाभारत के मैदान में। इसीलिए ये चतुश्लोकी भागवत का जो समझना है तो उसको हम सीधा भगवत गीता का श्लोक कोट करके समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा, हे अर्जुन ये ज्ञान सनातन है। पहले सूर्य इक्ष्वाकु और मनु को कहा गया था, ये ज्ञान लुप्त हो गया, वही ज्ञान मैं तुझे कह रहा हूं। भगवान कहते हैं कि गीता का ज्ञान 5000 साल पुराना नहीं है, यही ज्ञान भगवान फिर से दोहरा है। कौन सा? जो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था। अभी यही ज्ञान का तीसरा कॉन्टेक्स्ट देखें कि जब कर्दम ऋषि ने तपस्या की सतयुग में और भगवान प्रकट हुए, तब उन्होंने जो भगवान का वर्णन किया है भागवत के अंदर, तो वो वर्णन और गोपियों ने गोपी गीत में भगवान का वर्णन किया है, वो वर्णन में कोई अंतर नहीं है। या तो ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान प्रकट हुए, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर में ये श्लोक डाल सकते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि प्रेम के चक्षु चाहिए, प्रेम का अंजन लगाकर भगवान की बातें स्वीकार नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ शुष्क ज्ञान के द्वारा हम नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान ऐसी मूर्ति है जो प्रेम का प्रादुर्भाव है, वो संपूर्ण प्रेममय है, वो रसराज है। प्रेम का अर्थ है प्रेम में से रस मिलता है, और वो रसराज श्री कृष्ण है। तो उनको ज्ञान के जरिए या शुष्क बुद्धि के जरिए अगर हम समझना चाहेंगे, नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए हमारे पास प्रेम होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति का अर्थ है प्रेम दूसरा शब्द में, और भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा का से प्रेम उत्पन्न होता है। तो अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है, यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेम भक्ति की साधना से ही प्राप्त होता है। आगे समय पूरा होने जा रहा है, आगे का सेकंड पार्ट हम अगले हफ्ते लेंगे। ये तीसरा श्लोक का पहला हिस्सा हुआ, तीसरा श्लोक का दूसरा हिस्सा अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ समय के पाबंदी से। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे हम हर साल स्कूल में पढ़ते हैं, तो हर साल हमें नए सिलेबस की नई किताबें आ जाती है, नई नोटबुक आ जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। अभी नई किताब आ गई, नई किताब में जो है वो हम स्वीकार करते हैं, तभी जाके एनुअल एग्जाम में हम पास होते हैं। हम जैसे नई किताब की लिखी हुई जो भी
प्रणालिका है, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ज्योमेट्री हो, हिस्ट्री हो, हम उसमें बताई गई बातों को हम स्वीकारते हैं, तब जाके एग्जाम में पास होते हैं। ठीक वैसे ही भगवान का शुद्ध भक्त शास्त्रों की बात को स्वीकार करेंगे, तब मृत्यु की एग्जाम सक्सेस होगी। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि शास्त्र किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, अपौरुषेय है। शास्त्रों का कई दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि शास्त्र परम शुद्ध है, सनातन है, हमारे लिए कल्याण के लिए भेजा है भगवान ने ये शरीर का मैन्युअल बनाकर भेजा है। जब ये हम समझेंगे, तब शास्त्र प्रमाण को हम सर्वश्रेष्ठ महत्ता दे पाएंगे, तब हम आत्म उन्नति कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो अगर प्रश्न नहीं है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को चरणों में समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी गलती, क्षति है या गलती है तो मेरी अपनी ये कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।